Assalamu alaikum wa rahmatullah adab. This is me Ajaz Jahangir, and in this today's video we will try to learn all about the employees performance monitoring portal, that is EPM. Okay, now where from to start? हम start कहाँ से करेंगे? My dear friends, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें प्ले स्टोर में जाना है, एक ऐप सैंडीज SANDES ऐप डाउनलोड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा, आई विल गो इन प्ले स्टोर, आई विल टैप दिस एंड आई विल जस्ट राइट SANDES. okay, now I will tap on this Sandees app. Here it is. I will tap on install. Okay, now the app is getting installed, so I have to wait a bit until it gets fully installed. So my dear friends, alhamdulillah, the Sandees app has got downloaded successfully, and I will tap on this open button. Sandees permissions, I will tap on okay. I will allow Sandees to access your contacts. I will tap on allow button always. Okay, allow. Alright, now I have to tap on this mobile number and enter the mobile number that is there in our CPS. Okay, now here is the mobile number, but please, my dear friends, please type the mobile number and enter the mobile number that you have updated on your CPIS. Okay, now tap on I agree and get OTP. Now I have to wait a bit until I get an OTP. Right, I will tap on this allow and it will automatically enter the OTP here. Now here I will tap on skip. Now here is my name, I will tap on sync and it's syncing contacts. So the syncing is completed. Now what I have to do, I will just minimize this or I will leave this app. Right, next what I have to do, I will tap on any browser like Chrome browser. Okay, and I will write here EPM.jk, and now here is this. Now you see access to EPM portal. I have to tap on this register button. Okay, and I will tap on this new user button that's on the top right side of the screen, and I will enter CPIS ID number. Okay, now let me write it. I will tap on this get details. Now here are the details, and I will tap on this send OTP. Now it shows OTP generated and sent to registered mobile on Sandees. Okay, and I will enter the OTP here. It is this 33403080. I will tap on submit OTP. Okay, now I have to create a password here. I will create a password and it should be of my choice. I will keep the first letter as capital and the rest of the letters as small, and I will add a special character and I will add some numericals. Okay, and I will tap on register. अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अब मुझे साइन इन करना है, और साइन इन में यूज़र आईडी मेरा जो CPIS आईडी है वही मैं एंटर करूँगा। और पासवर्ड जो मैंने सेट किया है अभी वही मुझे यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं पासवर्ड भी एंटर करूँगा। ओके, तो मेरा अब कैप्चा इधर है, तो मैं कैप्चा एंटर करूँगा। ओके, अब मैं लॉग इन करूँगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये
और जब पहली बार हम साइन इन या लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे नेवर और सेव दिखा रहा है, यानी सेव पासवर्ड। तो मैं पहली बार ये सेव करूँगा, ठीक है, क्योंकि दोबारा जब मैं लॉग इन करूँगा या साइन इन करूँगा तो तब मुझे इसमें दोबारा से यूज़र आईडी और पासवर्ड रिपीटेडली नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए ये मेरी डिटेल्स हैं, और नीचे आप देख लीजिए ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा जो नीचे दिखाए गए हैं ये रेक्टेंगुलर शेप्स इन रेड कलर। तो इनका मतलब है कि मेरा अभी किसी मंथ का रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो अब मुझे यहाँ से क्या करना है, अब मुझे रिपोर्टिंग ऑफिसर डिटेल्स, जो मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसका CPIS मुझे यहाँ पे डालना है। तो याद रखिए हमारा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, इन केस ऑफ हाई स्कूल्स हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर हेडमास्टर है, एंड इन केस ऑफ प्राइमरी, मिडिल एंड KGBV स्कूल्स तो हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर हमारा जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर का जो CPIS ID है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसका ये CPIS ID यहाँ पे एंटर करूँगा, तो वो है ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा गेट डिटेल्स, और मुझे थोड़ा सा अब इंतज़ार करना है। हाँ ये देख लीजिए, हम उस जो हमारा वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, जो हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर है, उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे आ गई है। अब मुझे सेंड रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट। अब हमें इंतजार करना है जब तक हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती है। Now my dear colleagues, we are done with Sandy's app and we have successfully registered on EPM portal. Now हम दोबारा से Chrome ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हमें EPM दोबारा से सर्च करना है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में पहले से ही है, तो ये वाला epm.jk.gov.in इस पे क्लिक करेंगे। तो इस बार हमें अब रजिस्टर एंड लॉगिन पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे अपना CPIS ID देना है। CPIS ID में जो मैंने न्यू यूज़र पे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी और अपना पासवर्ड सेट किया था, ये जो कैप्चा आया है इसको मैं डाल दूँगा। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप टू दिसंबर का ये मुझे रेड में दिखा रहा है। दैट मीन्स मेरा रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुआ है। तो अब मुझे अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। इसके लिए यहाँ पे ये 3 लाइंस है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और मैं सबमिट एक्टिविटीज़ पे सबमिट रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो पहला सबमिट एक्टिविटीज़ में सिलेक्ट मंथ, तो मेरा जो मंथ जो मुझे सिलेक्ट करना है दैट इज़ फरवरी। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क असाइनड में मैं अप टू 1000 कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ। इसमें फरवरी के लिए चूंकि स्कूल्स बंद थे, ये टीचर्स के लिए, और बाकी एम्प्लॉइज़ का तो एज यूजुअल उनका चल रहा था, वो अपने हिसाब से उसमें डाल देंगे। तो एज टीचर्स हम क्या इसमें लिखेंगे, जैसे फरवरी में हमारा एनरोलमेंट ड्राइव था, हम लिखेंगे एनरोलमेंट ड्राइव। हम लिखेंगे इसमें बड़े भारत 100 डेज रीडिंग कैंपेन, इस पे हमने काम किया है। बड़े भारत 100 डेज रीडिंग कैंपेन। इसी तरह से हमने इसमें स्कूल प्रिपेयर्डनेस प्लान जो तैयार किया था, उसमें थोड़ी सी हमने स्कूल्स खुलने से पहले क्लीनलीनेस ड्राइव किया था, क्लीनलीनेस ड्राइव। और इसी तरह से हमारा इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे हमने काम किया था, SBA ट्रेनिंग वो हमने अटेंड की थी। और इसी तरह से हमने इसमें निष्ठा मॉड्यूल्स भी हम उन पे तो काम कर ही रहे हैं, उनको ऑनलाइन हम अटेंड कर ही रहे हैं। निष्ठा मॉड्यूल्स ऑनलाइन, ओके। तो ये ब्रीफ मेरा वर्क है।
इसी तरह नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन ऑफिस ड्यूरिंग द मंथ। अब चूंकि फरवरी में स्कूल्स बंद थे, तो अगर किसी दिन हमने स्कूल में ऑफिस में आके कोई अटेंड मीटिंग की है या कोई काम किया है, तो उस सिलसिले में हमने कितने दिन उसके लिए दिए हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे। तो मानिए चलिए हमने 5 दिन दिए हैं, तो मैं 5 डाल दूंगा, ये नंबर डालना है। नंबर ऑफ डेज इन द फील्ड, तो फील्ड में हम जैसे हमें डिसबर्समेंट ऑफ एमडीएम करना होता है, वो उनका जो पैसा आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें से अगर वो एडवाइस हमें बैंक में ले जानी है तो हम फील्ड में हैं। और इसी तरह से अगर हमें यूनिफॉर्म का पैसा डिसबर्स करवाना है, स्टूडेंट्स के अकाउंट में डालना है, तो हम बैंक पे जाते हैं, तो वो उस तरह से। अगर एमडीएम का राइस हमने लिया है या एमडीएम के रिलेटेड कोई अटेंड मीटिंग की है या उसमें कोई काम किया है, तो वो नंबर वो भी आएगा। इसी तरह हमने बुक्स ली है, तो उसके लिए हम फील्ड में गए हैं, किसी स्कूल दूसरी जगह गए हैं जहाँ से हमने बुक्स रिसीव की है, या अगर कहीं पे कोई फर्नीचर रिसीव किया है, इस तरह के जो भी नंबर ऑफ डेज हमने फील्ड में दिए हैं तो वो हमें लिखना है। तो फॉर एग्जांपल ये भी चलिए लिखता हूँ मैं 5 दिन। इसी तरह नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड, तो इसमें नंबर ऑफ विजिटर्स में आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में अगर कोई विजिटर आया है, जैसे कोई चीफ एजुकेशन ऑफिसर आया हो, जोनल एजुकेशन ऑफिसर आया हो, या पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में से कोई आया हो, तो उनका हमें लिखना है कि नंबर ऑफ विजिटर्स अटेंडेड। या अगर इवन पेरेंट्स भी कभी आए हों उनके एडमिशन के सिलसिले में, तो विजिटर्स वो भी हैं, तो वो कितने आए हैं तो वो हमें लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ ये 4। इसी तरह नंबर ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कैंप्स अटेंडेड, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अगर कभी कोई पेरेंट आता है, कोई ग्रीवियंस उसकी होती है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, किसी का कोई और एजेंट ग्रीवियंस होती है, तो उस तरह के अगर कैंप कहीं पे लगा है, या स्कूल में ही हमने छोटा सा एक रखा था और पेरेंट्स आए तो उनका हमने वो अटेंड उनको किया, तो वो कितनी बार हुआ है। चलिए मैं लिखता हूँ 2 बार। और नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस अटेंडेड रिजॉल्व्ड, अगर ग्रीवेंसेस आई हैं तो हमने वो कितनी रिजॉल्व की हैं, तो चलिए 2 ग्रीवेंसेस आई थी और 2 हमने रिजॉल्व कर दी है। इसी तरह फिजिकल टारगेट्स अचीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो ये फिजिकल टारगेट्स में जैसे हमारा कोई फिजिकल टारगेट था, जैसे हमारा रिपेयर्स का स्कूल में काम था, या अगर हमें फिजिकल टारगेट में परचेजिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स है, या हमने फिजिकल टारगेट में कोई क्लीनलीनेस ड्राइव या एमडीएम के रिलेटेड कोई सामान लाया है, तो वो हमारा फिजिकल टारगेट है, तो हम इसमें वो डाल देंगे। जैसे मैं लिखूंगा रिपेयर्स क्लीनलीनेस ड्राइव एग्जाम्पल के तौर। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा लाइब्रेरी बुक्स, अब इसमें फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव ड्यूरिंग द मंथ, जो मैंने फिजिकल टारगेट जो मेरा था उसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट अगर थी, जैसे लाइब्रेरी बुक्स के लिए कोई ग्रांट आया हो फॉर एग्जांपल, या क्लीनलीनेस ड्राइव पे अगर आपने कुछ पैसा खर्च किया है, या तो वो पैसा हमें इस वाले कॉलम में वो डालना है। फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड मैंने अपना 1000 रुपीज़ मैंने इस पे खर्च किया है, तो वो स्कूल का ही है, तो वो इस पे लगाया है, तो ये मेरा फाइनेंशियल टारगेट है। सिग्निफिकेंट हायर अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन में अगर हमने एनरोलमेंट ड्राइव में ऐसा काम किया हो कि हमारे स्कूल का एनरोलमेंट अच्छी तरह इंक्रीज हुआ हो और सेटिस्फैक्टरीली इंक्रीज हुआ हो, और तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। या अगर हमारे स्कूल ने कहीं पे कोई बच्चों ने कहीं पार्टिसिपेट किया है, कोई गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उसमें उन्होंने कोई पोजीशन लाई है, तो यहाँ पे वो हम डाल सकते हैं। जैसे अभी फरवरी का मंथ था, स्कूल बंद थे, फिर अभी हम लिखेंगे जैसे एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ये मैं एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर किसी का कोई सिग्निफिकेंट हायर अचीवमेंट नहीं है तो वो नील भी डाल सकता है। तो इस तरह से हमने ये अपना रिपोर्ट तैयार किया है और हमें अब सबमिट बटन पे प्रेस करना है। तो ऊपर आप देख लीजिए ये सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, दैट मीन्स मेरा रिपोर्ट अब सबमिट सक्सेसफुली हुआ है। तो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास चला गया है। कंट्रोलिंग ऑफिसर अब क्या करेगा,
वो इसको रिव्यू करेगा, वो देख लेगा, वो अकॉर्डिंगली इसमें ग्रेडिंग पॉइंट्स डाल के मेरा ये हो जाएगा। और नीचे आप देख लीजिए जो मैंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है, इट शोज ये ग्रीन कलर, तो इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट इज सबमिटेड बट नॉट रिव्यूड, यानी रिपोर्ट मेरा सबमिट हो गया है, अभी ये रिव्यू होना बाकी है। तो वो कंट्रोलिंग ऑफिसर जब इसको रिव्यू करेगा तो इसका ये जो कलर है ये ब्लू हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर कोलीग्स, आई होप कि मेरा ये जो वीडियो आपने अच्छी तरह समझा है और आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।